are final year student or third year students? Third year student. May be aware about the CAD, computer aided design. Some of you may be aware about the computer aided design areas, right? So that is extended to reverse engineering, right? And hopefully next year you will going to study this reverse engineering. So overviews of reverse engineering, point cloud data acquisition, modeling from point cloud data, case study summary. It will be more elaborated to you in forthcoming slides. Okay. So in many areas of industry, it is desirable to develop product by digitizing conceptual clay models. What is reverse engineering actually? When we are copying an assignment from a friend, it is easy to make a new assignment within limited time duration of time, right? But when you are individually making a new assignment, answer of new assignment, it is taking too much time. Am I right? Right? Copying is very simple. So reverse engineering is basically in a more crude way, I can say it is copying basically part, right? Existing part you have to copy three-dimensionally, and then you do your own innovative ideas on those existing design, right? And develop a new product. So that is so simple and very faster process. So this is what we are elaborating over here. This is also referred as reverse engineering of shape synthesis from digitized point cloud data. I mean digital manufacturing. Existing part digitizations. How we'll see next time. Next slide. The existing of computer model, whatever three-dimensional model that we digitize, it acts as a tool for the development of the new product. Right? How those will be available in next slide. So present scenario is altogether refer to the quality of the product. How best is the quality of the product? Competition is going on across the globe for the quality, and quality is basically referring to the more accuracy, more reliability, and more faster productions. Right? This is a broader terminology of accuracy, which is very well known by industries. Not only measurement kind of thing, that is fine tolerances, limit fit. This is one way, but reliability and faster production, this is another way of accuracies. I designed this presentation in such a fashion so that you are having more feature regarding the product, right? Daily routines, lives and physical observations, those are there over here. So all process automatic CAD data are derived from the existing product. All completed 3D object available that can be produced with minor changes. No special tool or fixture are necessary. Previous technologies, lot of fixtures and tools are needed. Now in CAD areas, no need for those fixtures. All fine details could be created. High accuracy and normal tolerances would be plus minus 1%. Then high surface qualities. The applications of reverse engineering is copy a part. You don't need the original drawing, original design. Previously आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में पहले बोलते थे पुरानी ड्राइंग कोई खोज के निकालो, अब ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं, कॉपी चाहिए पार्ट की बस. एग्जिस्टिंग पार्ट एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन, एस्थेटिक डिजाइन, वुडन क्ले मॉडल इज फर्स्ट, कंसेप्चुलाइजेशन होगा उसका, कस्टम फिट, कस्टम साइजेस के प्रोडक्ट वेरी इजीली पॉसिबल है रिवर्स इंजीनियरिंग से. मैन्युफैक्चरिंग में इसका एप्लीकेशन है. देन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, आर्ट स्कल्पचरिंग. ये भी नई टेक्नोलॉजी दिख रही है मुझे प्रोजेक्ट करके. हाँ, I mostly use computers desktop. So aerospace and aviation, these are another applications of reverse engineering. You are having CAD models, then you are having स्क्रीन होता है यहाँ पे. फोल्डर में
here how we are digitizing. सुनील जी नई चीज पकड़ा दी मुझे यार। अरे सर मुझे केवल एक लैपटॉप चाहिए था, सब काम कर लेता मैं। मुझे ये मूवी देखना है, ये देखना है, इसके बाद लैपटॉप है क्या यहाँ पे? इसका लैपटॉप है क्या? Anybody having laptop? ये मूवी देखना है, कैसे देखें? या तो सर एंड में करना है कि मैं मंगवा लेता हूँ सर? मंगवाओ यार, मजे नहीं आ रहे। डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, नई चीज में फंस गए हो। अरे नो टॉकिंग प्लीज। Materials is deposited layer over layer, layer additive process. Another name of repetitive type is layer additive process. For example, ये अपना रूम है, इसकी बाउंड्री देखा होगा आपने ब्रिक से बनी हुई है। एक ब्रिक, उसके ऊपर अनदर ब्रिक, एक पेस्ट बीच में डाली हुई है सीमेंट की, उसके ऊपर फिर अनदर ब्रिक्स. So like that we are getting height, right? Cross section बन रहा है, every cross section एक layer over layer layer. So like that we are having height. So same principle जो है 3D printing में भी यूज करते हैं. और ये सिस्टम जो राइट हैंड साइड में बता रहा है कि हाउ द लेयर इज डिपॉजिटेड एंड वी आर गेटिंग द पार्ट्स. सो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल. नाउ केस स्टडी यूज करेंगे हम इसमें. हाउ द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बेसिकली टू डिजाइन द prosthetic orthotic devices which is useful for the manipulations of the foot or manipulation of the abnormal organs of the human bodies. Particular research is based on clubfoot of the babies. And normally some baby born with clubfoot deformities, right? Some baby born like this type of foot, clubs inside. That is known as clubfoot in general. So medical terminology of that is CTEV, right? Congenital talipes equinovarus. Normal name of that one is clubfoot. So we are using these digitization technologies, advanced engineering technologies for designing of a orthotic device. Now foot is split for a customization purpose of abnormality, right? So there are two types of abnormalities are there. What are these two types? These are two types of abnormalities in the foot, right? Baby is born with those types. That is one is unilateral deformities or unilateral clubfoot when it is occurring in one foot. When it is occurring in both the foot, it is known as bilateral deformities, right? So we are going to design a device for correcting all those things. So present technologies available with this one is plaster casting technologies. You see many babies is having rape of plaster, right? For a week duration, for a month durations, or for a 2 week durations, that all depend upon the degree of deformities. बेबीज को कितने लेवल पे डिफॉर्मिटीज है, मॉडरेट डिफॉर्मिटीज है, लाइट डिफॉर्मिटीज है, सीवियर डिफॉर्मिटीज है, उसके ऊपर प्लास्टर कास्टिंग का ड्यूरेशन जो है फिक्स करेंगे, राइट? सो ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज है. जब ये सब
MRI, CT स्कैन या डिजिटाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ये सब नहीं था उस समय का, वो चल रहा है कहानी। तो अब टेक्नोलॉजीज आ गई है, उसके हिसाब से नई मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजीज डिजाइन करना है, ताकि प्लास्टर कास्टिंग टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, यू वेव द प्लास्टर एंड द स्किल्ड डॉक्टर्स और सर्जन विल ट्विस्ट द प्लास्टर इन नॉर्मल फैशन, राइट, सो दैट यू कैन पुट द फूड posture of the food for a specific duration of time, so that the growing of the food takes place in that normal direction only. And when they open the food, 1.5 महीने या 1 महीने या 15 दिन में जब वापस से प्लास्टर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में ग्रो हुआ, राइट, उस प्रिंसिपल पे वो प्लास्टर कास्टिंग होता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हैंडल द प्लास्टर बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट बेसिकली। व्हेन आप अगर अपने को ही एक जगह पे प्लास्टर लगा दे फुट के अंदर और बोला जाए कि 1 महीने तक बैठे रहना आईसी पे, तो very painful, right? So overall idea is to develop a technologies which is not user friendly ways of the baby. So एक तो physiotherapy methods available है, that is plaster casting, then surgical methods available है, जो severe casting होगी वो सर्जरी से ठीक करेंगे, और इन सब के बीच हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा एक नया रिसर्च है। तो इसमें क्या है, बेबी इसको पेशेंट्स को लेना है, उसके जो है MRI स्कैन लेना है, उसको डिजिटाइजेशन करना है, उसके फुट को लेबोरेटरीज में डिज़ाइन करना है, उस फुट के ऊपर एक ऑर्थोटिक डिवाइस डिज़ाइन करना है, उस ऑर्थोटिक डिज़ाइन में एक मैकेनिज्म्स लगाना है, उस मैकेनिज्म्स में हमको रोटेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन जो मेडिकल मूवमेंट होते हैं या जो करेक्ट करने की जो उनके लिटरेचर है, उस लिटरेचर के हिसाब से एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करना है, वो मैकेनिज्म को ऑर्थोटिक डिवाइस में फिट करना है और पीरियडिकली उस मैकेनिज्म को मूवमेंट देना है, सो दैट फुट कम टू द नॉर्मल पोजीशन एज व्हेन बेबी स्टार्ट मूविंग, राइट। ये चार्ट बता रहा है, एंड देन अल्टीमेटली दैट डिवाइस इज कम्युनिकेटेड टू द डॉक्टर्स और सर्जन्स और इंडस्ट्रीज टू टेक इट इनटू एक्शन एंड गिव फीडबैक फॉर द मैनिपुलेशन, राइट। सो द फंक्शन, स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक ये डिजाइन क्राइटेरिया है उस डिवाइस का। देन ये मेडिकल लिटरेचर्स बोलता है, ये वो प्लास्टर कास्टिंग जो भी करते हैं इसके हिसाब से लिटरेचर्स रिव्यू कर रहे हैं वो लोग, और यही मूवमेंट जो है प्लास्टर में देते हैं वो लोग, यही मूवमेंट हम जो है डिवाइस में हमको प्रोवाइड करना है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है, आवाज भी आ रही है पीछे तक? सो द वन दैट इज top left side, it is showing the rotations in external sides of the foot. क्लब फुट में फुट जो है इनसाइड रहता है, बॉडी सेंटर लाइन के मूवमेंट रहता है, तो बॉडी सेंटर लाइन से अवे मूव करना है। देन सेकंड साइड पे जो है, सेकंड राइट कॉर्नर पे जो है फुट नीचे की तरफ रहता है, डिफॉर्म फुट जो मैं एबनॉर्मल फुट की बात कर रहा हूँ नीचे की तरफ इस टाइप का रहता है, तो उसको उठाना है, नॉर्मल पोजीशंस पर रखना है, मैकेनिज्म से प्रोविजन होना है। उसके बाद थर्ड बॉटम लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो जो ऊपर वाला जो दिया है हमने वो रोटेट करेगा अगर, तो ये जो बॉडीज के जो सॉफ्ट टिश्यूज है या हार्ड टिश्यूज है उनका अलाइनमेंट जो है परफेक्ट होगा ये मूवमेंट से। ये मेडिकल साइंस बोल रहा है, मेडिकल के लिटरेचर्स बोल रहे हैं, जो जिसको भी प्लास्टर चढ़ाते हैं या प्लास्टर जो एक्सपर्ट रहते हैं पीपुल्स, उनको ये टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाती है, दिस इज नोन एज पॉन्सेटी मेथड्स बेसिकली। तो ये कि यही चीज़ें प्लास्टर में करते हैं। हमारा ओवरऑल आइडिया यही है कि यही चीज़ जो है अपने मैकेनिकल मैकेनिज्म में रहे, नया कुछ भी नहीं है। मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि ये मूवमेंट फुट को प्रोवाइड करे, एक्सटर्नली वी कैन सी दैट। दिस इज द ओवरऑल objective of the device development. So before that one हम लोगों ने जो है उसके CT स्कैन या MRI स्कैन के डेटा CT स्कैन में एक्सपोज नहीं करते हैं बेबीज को because it is harmful, those radiation at that tender age level, right? So that is MRI which is a non harmful radiations of the babies. So MRI स्कैन लेके फिर उसको जो है मॉडलिंग करना, मॉडलिंग करने के बाद उसका जो है प्रोटोटाइप बनाना, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये एक इंटर सब्जेक्ट के ऊपर ये वर्क करा हुआ और ये इंटरफेसिंग हो गया है। और इसके बाद जो है ये बेबीज पेशेंट्स लिए हॉस्पिटल से जो डिफॉर्मिटीज़ वाले थे, और ये 6 मंथ की एज है कोई बेबीज़ की, कोई बेबी मेल है और कोई बेबी जो है 2 मंथ की एज में है, कोई बेबी जो है 1 मंथ की एज है। ये डिफरेंट है, किसी में मॉडरेट डिफॉर्मिटीज़ है, किसी में सीवियर डिफॉर्मिटीज़ है, किसी में यूनिलेटरल डिफॉर्मिटीज़ है। देखेंगे अगर आप पूरा वाला तो लेफ्ट राइट जो है टॉप लेफ्ट जो है वो 6 मंथ का बेबीज़ है और बायलेटरल डिफॉर्मिटीज़ है,
राइट वाला जो है वो 1 मंथ का बेबी है और वो यूनिलेटरल डिफॉर्मिटीज है, और बॉटम वाला जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ की एज का बेबी है और उसको जो है यूनिलेटरल डिफॉर्मिटीज है, बहुत ही लाइट डिफॉर्मिटीज है। एक जो है 3 मंथ के बेबीज में जो बॉटम लेफ्ट साइड, ये हम लोगों ने जो है MRI स्कैन के डेटा लिए और 3D मॉडल्स इनके जनरेट करे, है ना। उस मॉडल्स की स्टीरियोलिथोग्राफी फाइल बना के 3D प्रिंटिंग करा उसका। तो फुट अब अपनी लैब में है, जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक में जो है पेशेंट रहते हैं, अपनी लैब में जो है पॉलीमर के फुट है। अब पॉलीमर के फुट के ऊपर अपन फिजियोथेरापी नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉलीमर के फुट को कन्वर्ट करा हमने रबर के फुट सिलिकॉन के फुट में, है ना। सो दिस इज सिलिकॉन मोल्ड डेवलप करे, और सिलिकॉन के मोल्ड में फिर जो है सिलिकॉन स्टोर करके इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें स्ट्रेन गेजेस फिक्स करें, क्योंकि आपने देखा होगा ह्यूमन जो एंकल जॉइंट्स है, देयर आर सो मेनी बोन्स उसमें, स्मॉल बोन्स, सब जॉइंट्स, ट्रिमेंडस जॉइंट्स आर देयर, राइट। सो वो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है जब हम करेक्शन करते हैं, तो अलाइनमेंट, क्योंकि एब्नॉर्मल ग्रुप में बोन का अलाइनमेंट डिफरेंट है, बस और कुछ भी नहीं है। वो अलाइनमेंट अगर करेक्ट हो जाता है तो नॉर्मल, अगर देखा हो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर अपन पौधा जमीन में उगाते हैं और पौधा ऐसा ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो एक सपोर्ट अपन लगा के उसको सीधा कर देते हैं, नाउ इट विल ग्रो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये का यही प्रिंसिपल, नेचर का प्रिंसिपल वहाँ पर भी अप्लाई करना आपको कि उसके बाय द टाइम बेबी स्टार्ट टेकिंग वॉकिंग, फुट कहते हैं, पाँव ले रहा है बच्चा, है ना, जब वो बेबी जैसी फुट लेना चालू करता है उस समय उसका अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, फिर उस पर लोड सही पड़ता है और ऑटोमेटिकली बोन का ग्रोथ उस डायरेक्शन पड़ता है। तो 1.5 मंथ या 3 मंथ के अंदर जो है ये चीज़ें करेक्ट हो जाना चाहिए। उस समय जो है बोन भी बहुत सॉफ्ट रहती है, डायरेक्शन का मूवमेंट भी फ्री रहता है उसका। वंस इट बिकम हार्ड, जॉइंट जब हार्ड बन जाते हैं तो देन सर्जरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, है ना। तो डिवाइस ओनली टेंडर एज के बेबीज के लिए है, वर्क केवल टेंडर एज के बेबीज के लिए, नॉट फॉर द सीनियर पर्सन। सो ये इंस्ट्रूमेंटेशन बना के अपन ने फिजियोथेरापी लैब में जो भी डॉक्टर्स के प्रिंसिपल थे, जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया, उसी से हमने फिजियोथेरापी इस करने के लिए लैब में डेवलप करे। ये एनाटॉमीज है इनका जॉइंट्स की, बायोमेकेनिक्स बता रही है कौन सा जॉइंट टेलर जॉइंट है, फिर मस्कुलर सिस्टम से कहाँ पे कौन से फोर्सेस आते हैं, इस टाइप के फोर्सेस जो है हमको मस्कुलर फोर्सेस है, ये टाइप के फोर्सेस के अकॉर्डिंगली हमको मैकेनिज्म्स डेवलप करना है ना। तो वर्चुअल मॉडल बनाया फुट का, उस वर्चुअल मॉडल का प्रोटोटाइप बनाया लैब में फिजियोथेरेपी करने के लिए। उस फिजियोथेरेपी के बेसिस पे वर्चुअल सिमुलेशन करना है, फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनाया उसका, देन फाइनाइट एलिमेंट मॉडल्स के ऊपर जो है हम लोगों ने जो है फोर्सेस लगाया जो डॉक्टर पोंसेटी लगा रहे हैं उनकी लेबोरेटरीज, उनकी बुक्स के अंदर, उसी डायरेक्शन में उसी अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड्स के फोर्सेस हमने लगाए यहाँ पे, और बिहेवियर्स फुट का चेक करा कि क्या हुआ। तो इस बिहेवियर के बेसिस पे हम लोगों ने फिर डिजाइन प्रोटोटाइप डिजाइन चेंज करा। यहाँ पे भी देख रही होगी, मुझे लगता है आपको सिमुलेशन बताते हैं अभी मूवमेंट कैसा हो रहा है, नॉर्मल पोजीशन में जा रहा है, दिस इज अ डिफॉर्म फुट, तो पर्टिकुलर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सिमुलेशन रहेगा। सर फाइनल ईयर में जब आप जाओगे तो पढ़ोगे, उसमें ये वर्चुअल सिमुलेशंस होता है, अपन इंटायर सिस्टम को डिस्क्रिटाइजेशन कर देते हैं और फिर एक एलिमेंट्स को लेके अपन एनालाइज करते हैं मैथमेटिकली, देन फिर समेशन कर लेते हैं पूरे सॉल्यूशंस का। तो ये चीज़ इसमें है। दिस इज अ मैकेनिज्म बेस्ड ऑन वर्चुअल सिमुलेशन इन फिजियोथेरापी। एक 6 बार चेन मैकेनिज्म हम लोगों ने डिजाइन करा। अब ओवरऑल चैलेंज है इस मैकेनिज्म को हाउसिंग करना ऑर्थोटिक डिवाइस के अंदर, मेडिकल डिवाइस में जो करेक्शन डिवाइस है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना। दिस इज अनदर चैलेंज सो दैट दे बी फील हैप्पी एंड यूजर फ्रेंडली। राइट, सो एक डिजाइन ये हमने प्रपोज करा, इसको चेक करा। इट्स रोबोटिक डिवाइस बेसिकली मैन्युअली वर्किंग। ये पॉइंट ऑफ डेटा फुट का जो MRI स्कैन करा उससे डिजिटाइज डेटा, और इस डिजिटाइज डेटा से जो है मॉडल्स प्लॉट करें हमने सेगमेंटेशन करके, क्योंकि कस्टमाइजेशन डिवाइस तैयार करना है, स्टैंडर्ड डिवाइस नहीं करना है, कस्टमाइजेशन डिवाइस सो दैट बेस्ट सॉल्यूशन अचीव हो। ये सरफेस मॉडल्स डेवलप करा है उसको सेम पेशेंट का। ये सॉलिड मॉडल क्रिएट करा हमने, एक जो फंक्शनलिटीज थी एस्थेटिक डिज़ाइन, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, यूजर फ्रेंडली, उसमें
जो प्रपोज मैकेनिज्म था वो फिक्स करना था, वो उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे। वो सॉलिड मॉडल, उसका प्रोटोटाइप डेवलप करा 3D प्रिंटर में, उस प्रोटोटाइप मॉडल से फिर ये मैकेनिज्म्स 6 बार चेन मैकेनिज्म जो है यहाँ पे फिट करा है। देखा होगा आपने, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, मशीन एलिमेंट्स है बेसिकली, स्प्रिंग है, फिर स्क्रू है, फ्लाई नट है, एंगल जॉइंट्स है, फिर आपका जो फुट पार्ट है, शेन पार्ट से ऑल टुगेदर 6 बार चेन मैकेनिज्म टोटल हो गया है ना। इसका मैं अभी बताऊंगा, डिस्प्ले करूंगा आपको। तो दिस इज मैकेनिज्म, ये लेबोरेटरी में अपन ने चेक करा, सिलिकॉन फुट के ऊपर लगा के फिर वो मैकेनिज्म से मूव कर रहा है फुट, हाउ इट बेसिकली मूविंग द फुट इन अ राइट पोजीशन आर नॉट। सो उसके बाद जो है मैनिपुलेशन करके देखा और मैकेनिज्म्स में इनकॉर्पोरेट करा चीजें, अपन ने करेक्शंस करे उसमें। सो ओवरऑल लैब ने परफॉर्मेंस इसका चेक करा अपन। दिस इज लाइव बेबी पेशेंट्स राइट, गिविंग वन यूनिलेटरल फुट, फिर क्लिनिक में ट्रांसफर करा हमने वो डॉक्टर्स के साथ में, और उसको लगा के बेबी पेशेंट को जैसे चेक करने का क्लिप है, अभी क्लिप नहीं चल रही है, बाद में बताएंगे आपको। So that is one case study for the orthotic design. There are many ways of abnormal foods, abnormal hand, abnormal organs, बहुत सारी चीजें होती है। वहाँ के लिए हम जो है 2 types of device होती है, prosthetic device होती है, orthotic device. Orthotic device, those devices which can use only to correct the abnormal organs. When the abnormal organ is corrected, the device is thrown. Prosthetic device is permanently used device when subject doesn't have a limb, for example, artificial foot, that is a prosthetic device. Forever the subject has to perform his routine work, for that one prosthetic device is used. We are using only for orthotic device. Reverse engineering, another case study for is sedentary development. हॉर्स राइडिंग के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत अच्छा शौक है, काफ़ी एक्सपेंडिचर्स होता है सीट डेवलप करने के लिए। पहले वुड की सीट्स बनती थी किसी जगह में, अब पॉलीमर की सीट्स बनने लगी है, उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारा वर्क होता है, तो फ्लेक्सिबल फाइबर्स भी यूज होने लगा। सो दिस इज नाउ ये सेडल फ्री अपने इंडिया में बन रही है, कानपुर में एक सेडल इंस्टीट्यूट से, पहले नहीं था वो, अभी खुला है वो, काफ़ी बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं वो। तो ये सेडल्स को जो है स्कैन करके उसका पॉइंट ऑफ डेटा बनाना, फिर उसके फीचर जो भी फीचर्स है उसके हिसाब से फीचर डेवलप करना, फिर सॉलिड मॉडल उसका डेवलप करना। ये एक फ्लो चार्ट है, आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक पॉइंट ऑफ डेटा जो सेडल का, देन सैंपलिंग करा, बिकॉज व्हेन यू आर 10 मिलियन पॉइंट्स सपोज, अब 10 मिलियन की पॉइंट्स की फाइल को हैंडल करना एक नॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट। तो सैंपलिंग कर लेते हैं, लो साइज की फाइल क्रिएट करते हैं, सो दैट क्रूशियल क्रिटिकल पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं, वहाँ से अपन डिजाइन करते हैं, दैट इज हैंडलिंग बहुत ईजी है। तो वो हैंडलिंग करके फिर सॉलिड मॉडल क्रिएट करा है, फिर पॉलीमरिक मॉडल प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग डेवलप हो, 3D प्रिंटिंग से फिर अपन ने इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए मोल्ड स्टील मोल्ड क्रिएट करें। नाउ यू कैन गो फॉर 10,000 पीसेस प्रोडक्शन, 50,000 प्रोडक्शन फॉर दिस सेडल्स राइट। सो this is another case study for Cedar Tree. ये another case studies है, आप देखें यहाँ पे शायद ये मूवी चल रही है, मैं बताऊंगा कि हाउ प्रोटोटाइपिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करते हैं रूटीन मैकेनिज्म को सक्सेसफुल करने के लिए, है तो यहाँ से देखने के बाद पता चलेगा मुझे लग रहा है। ये मूवी एक ही क्लियर हो रही है, देखना आपको। ये अलग अलग टाइप के गियर्स जो है अपन प्रोटोटाइप को बनाएंगे और देखेंगे सक्सेस रेट इसका।
सो लाइक दैट कहने का मतलब ये है कि गियर ट्रेन डिजाइनिंग, देन उसका पिच डिजाइन करना, एडेंडम डिजाइन करना, डिडेंडम डिजाइन करना, फूड प्रोफाइल डिजाइन करना, उसके बाद रेक एंड पिनियन डिजाइन करना, फंक्शनलिटीज अचीव हो रही कि नहीं हो रही है, ये यू हैव टू डू योर कैलकुलेशन ऑन द पीस ऑफ पेपर, देन implement it in your design, do prototyping, and then apply it and see the behavior of the product, functionalities achieve हो रही है या नहीं हो रही है. This is how you can use the reverse engineering for the success of your project.